হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আমরা এখানে কি করব? আমরা এখানে ভূত দর্শন করব। একদম ঠিক শুনেছ, ভূত দর্শন। তো আমরা সবাই ভূতে ভয় পাই, আবার কেউ ভূতে ভয় পাই না। কেউ বিশ্বাস করি, কেউ বিশ্বাস করি না। যেমন আমি ভূতে একদম ভয় পাই না। কিন্তু যখন ভয় পাই তখন ওই দুটো শুকিয়ে মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা হয়। তো আমি তাই ভাবলাম যে ভূতের ভিডিও, ভূতের মুভি, ভূতের গল্প শুনতে তো বহুতই ইন্টারেস্ট লাগে, খুবই ইন্টারেস্ট লাগে। কিন্তু একা সেই জিনিসটা দেখা, ভাবা, সেটা তো করতে গেলে একদম কেলেঙ্কারি অবস্থা হয়ে যায়। পুরো ফেটে যাওয়ার মতন অবস্থা থাকে। তো আমি তাই ভাবলাম যে আমার কিছুদিন ধরে খুবই ইচ্ছা হচ্ছে যে ভূতের জিনিস দেখবো, ভূতের সবকিছু দেখবো, একটু খবর-টবর নেবো, একটুখানি প্যারানরমাল অ্যাক্টিভিটি জিনিস দেখবো। সবই তো ইচ্ছা হলো, ভাবলাম। কিন্তু তখন আরেকটা জিনিস মাথায় স্ট্রাইক করলো যে একা দেখতে গেলে তো পুরো ফেটে একদম শুকিয়ে-ফুকিয়ে একদম পুরো হুল্লা হয়ে যাবে। তো আমি তাই ভাবলাম যে একা না দেখে তোমাদের সাথে দেখি। তাই ভাবলাম যে আমরা একসাথে ভূতের ভিডিও দেখবো। তার বেশি সময় নষ্ট না করে চলো কিছু প্যারানরমাল অ্যাক্টিভিটিস দেখি। তো চলো স্টার্ট করা যাক। চলো কি হয় দেখা যাক। बताते हैं इस पेड़ के पास जाना रात के समय पे ठीक नहीं है, ऐसा क्यों? यहाँ पर एक गांव के परिवार ने फांसी लगा ली थी। 5-6 लोग वो अच्छा खत्म हो गए थे। अच्छा तो उनकी रात के टाइम पर आत्मा भटकती है और दिन में भी मतलब लोग जाने से डरते हैं और रात को भी नहीं कोई अच्छा। आता जाता तो है। किसी ने देखा है कभी कुछ आत्मा? रात के टाइम दिन में भी देखा है, अकेले दुकेले जो দিনের বেলা নাকি ভূত দেখছে, তাও আবার নাকি গাছের মধ্যে নাকি ৫-৬ জন নাকি একসাথে ফাঁসি দিয়ে মরে গেছে। মানে কি হয়েছিল? কি দরকার? মানে এগুলো কি হচ্ছে যে যাতা? आता जाता है हाँ। उनको आत्मा दिखाई देती है। और अगर मैं रात को जाऊं तो ठीक है? आप नहीं, हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है। जाना ठीक नहीं है? नहीं। সরি, আমি ভূতের জন্য আসছি না অ্যাকচুয়ালি জাস্ট এই মানে যাই হোক কিছু জাস্ট ওর মুখটা দেখো একবার, মানে ওই লোকটার জাস্ট একবার মুখটা দেখো, মনে হচ্ছে যেন ওকে নিয়ে চোখে যেন ভূত দেখতে পেয়েছে। মুখ চোখটা দেখে আমার বিশাল হাসি হচ্ছে। और अगर मैं यहाँ चला गया तो कुछ दिक्कत हो सकती है? भाई दिक्कत होगी, वो आपको झेलनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई साहब, नहीं जाते हैं, आप कह रहे हो। ও ভাই মুখটা ভাই দেখার মতো, মুখটা সেরা ভাই, এক্সপ্রেশনটা আলাদাই। तो ठीक है। तो रात में मतलब पकड़ लेती हैं। अच्छा, और बताते हैं आवाज़ें भी आती हैं, सभी कुछ? आवाजें बहुत खराब सी आती हैं। खराब सी आवाजें आती है, चाहे ना किरकम टाइपर आवाज। अच्छा अच्छा हाँ, जैसे किसी ने किसी को दाब रखा हो। अच्छा अच्छा, हाँ, चलो डर के मारे कोई जाता ही नहीं है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। चलो और आपने इंटरव्यू देख लिया तो आपको मैं बता देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में दिल्ली से 378 किलोमीटर बिछवा गांव पड़ता है। वहाँ के अंदर बिछवा जाके गाँव। 3 किलोमीटर, हालांकि एक गांव पास में ही है, बट बिछवा के उस एरिया के अंडर ही आता है ये गांव। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ की बहुत सारी कहानियाँ हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, इस जगह पे लोग आने से भी डरते हैं। तो मैं आपको पहले इसकी स्टोरी बता देता हूँ। इसकी स्टोरी ये है कि आपको जैसे कि पता है कि भारत में भुखमरी, गरीबी और खेती बाड़ी से लोग कितने परेशान रहते हैं। उनको पैसा नहीं मिलता, कई बार फसल उनकी नहीं बिकती, कई बार उनके साथ फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि जिससे इंसान मजबूर हो जाता है। तो यही एक मजबूर परिवार की कहानी। এটা কিন্তু একদমই ঠিক কথা যে আমাদের ইন্ডিয়াতে এই প্রবলেমটা এত বাজে জিনিস যে কি বলবো। মানে গরিবদের কোনো অ্যাকচুয়ালি কোনো জায়গা থাকে না, মানে বিশেষ করে কৃষক পরিবারদের। মানে এত কষ্ট করে কৃষি কাজ করে, এই কাজ করে যাদের জন্য আমরা খেতে পাই, তাদেরকে কেউ পাত্তা দেয় না। এটা খুবই বাজে জিনিস, সত্যি খুব বাজে জিনিস। इस उत्तर प्रदेश में आपके सामने मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ था। एक फैमिली थी, पैसा नहीं था, ऊंची जात नीची जात, जैसे कि आपको पता है देश भर में होता है। আর এই উঁচু জাত নিচু জাত, মানে এই জাত দিয়ে কি হয়? জাত দিয়ে কি মানুষ দেয় কি না? জাত কি তৈরি করে দিয়েছে? এগুলো ফালতু, এই জিনিসগুলো প্রচন্ড ফালতু লাগে। যার জন্য সমস্ত ঘটনা ঘটে, মানুষ নিজেকে সুসাইড করে না। आज तक ये सिर्फ इंडिया में ही होता है, वैसे मेरे हिसाब से फॉरेन একদম कंट्रीज में नहीं होता। এটা और আমাদের এখানেই হয়। इसके कारण वो फैमिली बहुत ही जाके मजबूर हो गई थी, उनके पास पैसा नहीं था इलाज कराने का। जैसे कि एक आपको पता ही है, कभी इलाज की ज़रूरत होती है, कभी खाने की ज़रूरत होती है, इंसान मजबूर हो जाता है। और नीची जात थी, ऊंची जात नीची जात मैं नहीं मानता, मेरे लिए सारे नहीं इंसान भाई, एक बराबर हैं सेम ब्रो, और होने भी चाहिए आप सभी के लिए। অবশ্যই। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वजह से उस घर वाले की किसी ने मदद नहीं करी, जिसके कारण वो परिवार जिसमें 3 बेटियां, 1 बच्चा और 2 हस्बैंड वाइफ इस जगह पे आके, इस पेड़ के पास आके
अपने आप को दिन के समय में 1 से 2 बजे के बीच में फांसी लगा के लटक गए, अपने आप को मार लिया। इंसान जब मजबूर हो जाता है तो उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते, इस कारण वो ये स्टेप उठाता है जिससे कि इंसान उस परेशानियों से मुक्ति पा सके। मुक्ति मतलब फ्री हो सके, क्योंकि उनके पास कोई और रीज़न नहीं था ज़िंदा रहने का। इस लोकेशन पे ये शायद सारी फील्ड है। तो मैं आपको बताता हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम फार्मर फैमिली, सो आई डोंट केयर अबाउट द फील्ड्स के यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे खेती के बारे में कुछ नॉलेज ज़रूर है, क्योंकि मेरा बचपन भी और मेरा कुछ टाइम भी ऐसी जगहों पे गुजरा है और मैं पसंद करता हूँ ऐसी जगहों पे जाना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं EMF के साथ आया हूँ। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे उनके पैर पेड़ की डालियों पे लटके होते हैं কি বলছে এসব? और वो आवाज़ें দেখতে হচ্ছে मारते কিনা हैं জানি না, জাস্ট গায়ে কাটা দিয়ে উঠেছে। और चिल्लाते हैं और আরে ছোটবেলায় যখন মা, দিদা, ঠাকুমা যাকেই হোক বলতাম যে একটু ভূতের গল্প শোনাবে, সেম একই ঘটনা। গাছ থেকে, তাল গাছের উপর থেকে এরকম করে পা ঝুলাচ্ছে, ভূত পা ঝুলাচ্ছে। এইখানেও কি কি দেখাবে নাকি জানি না, জাস্ট গায়ে কাটাটা দেখো একবার, পুরো একদম জেগে উঠেছে হাত। दूसरा থেকো जो यहाँ की दूसरी बात है, আমার সাথে मैं आप থেকো। सब व्यूअर्स को ये बता देता हूँ, जितने नए व्यूअर्स हैं उनको भी ये बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ड है छिरोटा। চিরটা आपने सुना होगा, कभी आप इस नियर बाय आओगे तो आपको पता चल जाएगा छिरोटा, जिसका मतलब होता है कि जैसे कि मेरा सेम टू सेम एक क्लोन ক্লোন। আচ্ছা, किसी को दिखता है और वो उसे फॉलो करता है और उसे वो लेके जाता है और वो आवाज़ें मारता है। तो बताते हैं कि आपके सेम जैसा ही एक व्यक्ति, एक इंसान पेड़ पे लटका होता है। जैसे कि जो इंसान इस तरफ देखता है उसको लगता है कि वही इंसान यहाँ पे लटका हुआ है, ऐसा गांव वालों का कहना है और ऐसा लोगों का कहना है, जैसे कि आपने इंटरव्यू में देख ही लिया। तो आज मैं इस झूठ या सच को बताने आया हूँ विद दिस EMF मीटर। मेरे नए व्यूअर्स को मैं फिर से बता देता हूँ, EMF মিটার আইডিয়া নেই এটা কি। ये EMF मीटर है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं। EMF মিটার ব্যাপারে কেউ কি জানো? যদি জেনে থাকো কমেন্ট করো, কারণ আমি শুনেছি কিন্তু এটা ব্যাপারে কোনো নলেজ নেই। জানি না এটা আদৌ কি সত্যি কি মিথ্যা, আদৌ কি স্পিরিট প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস এটার দ্বারা ধরা যায় কিনা আমি জানি না। যদি কেউ জেনে থাকো অবশ্যই কমেন্ট করো। हर जगह उनके पास यही डिवाइस होता है, और भी डिवाइसेस होते हैं, बट आपको पता है मैं लॉकडाउन में शूट कर रहा हूँ, सो मेरे पास और सोर्सेज नहीं है नए नए लॉकडाउन डिवाइसेस मंगाने के भी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब मैं चलता हूँ उस लोकेशन की तरफ और आपको वो पेड़ दिखाता हूँ। बताते हैं कि 70 से 80 साल पुराना वो पेड़ है, जैसा कि आज तक लोगों ने बताया। পুরনো গাছ, সেখানে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে ভুতু বাবা। ভাই তো পুরো ঘেমে পুরো একেবারে ঝোল হয়ে উঠেছে, গরমের জায়গা। ये वो पेड़ है, এই সেই গাছ যেখানে পা ঝোলায় আর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, মানে ये वो पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, इतना विशाल पेड़ है। आप देख सकते हैं इसकी डालियाँ, इसको ऊपर से, इसको लेफ्ट साइड से, इसके राइट साइड से, कि कितना बड़ा और कितना पुराना पेड़ है ये। और काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि वो क्या पड़ा हुआ, तो मैं उसमें बता देता हूँ, दिखा भी दूंगा लास्ट में कि उसके अंदर ये मेरे EMF का बॉक्स, इस लाइट का बॉक्स रखा हुआ है और मेरा लोअर है। मैं गारेज बैग का वो लेके आ गया था क्योंकि बैग लाना थोड़ा सा हो गया। और इतना लेट टाइम मैंने क्यों दिखाया, तो मैं आपको बताता हूँ। ये पीछे से मोर की आवाज़ आ रही है, সালা ভয় मोर পেয়ে है। উঠেছি। इतना लेट क्यों आया मैं ये बता देता हूँ कि हम यहाँ पे 12 बजे शूट करने वाले थे, बट हमारी आँख लग गई, हम गाड़ी में सोते रह गए, जिसके कारण हम काफ़ी लेट हो गए। बट जो गांव वालों का कहना वो ये है कि यहाँ पे दिन में दिखाई देता है, पर आप लोग चाहते हैं कि सच तिवारी, सागर तिवारी रात को ही शूट करे विद गूगल टाइम, जैसा कि मैं अब तक करता हूँ। मैं कभी भी जाऊँगा, कितने बजे भी जाऊँगा, तो मैं आपको टाइम ज़रूर दिखाऊँगा, चाहे वो 7 बजे हो चाहे 8 बजे हो। मेरे नए व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा और पुराने व्यूअर्स को कि आज तक यूट्यूब में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि गूगल टाइम दिखाते हैं, वरना तो मैं ये 7 बजे भी शूट कर लेता। मेरी आँख 11 बजे लगी होगी, इस वजह से मैं इतना लेट उठा हूँ, वरना तो मैं 7 साढ़े 7 बजे पहुँच भी चुका था। तो चलिए आइए
कुछ EMF के थ्रू इनसे बातें करते हैं। EMF मीटर। पहली बात, मैं कभी ये नहीं बोलता कि भूत होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ एनर्जीज होती हैं। मैंने कभी भूत नहीं बोला, अपने दिमाग में डाल लो, अनटिल अनलेस वो मेरे को दिखती नहीं है। और जब मैं उन्हें देख लूँगा तब मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आगे आ जाओ एक बार। যখন দেখে নেবো আমি না যখন শেষ হবে ये कुछ पक्का। काले कपड़े लाल कपड़े बांध रखे हैं, जिससे बताते हैं गांव वाले कि मैंने पूछा था जब मैं यहाँ पे आया था दिन में, तो मैंने उनसे ये बात पूछी कि आपने ये क्यों बांधा हुआ, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे कुछ बड़े बड़े बाबा जो कि पंडित होया करते हैं उनसे पूजा करा लेते हैं साल में एक बार, तो ये तब के बंधे हुए हैं। और आपको पता ही है, मैं आप सबको बता देता हूँ कि पीपल का पेड़ जो होता है उसमें लोग दिन में पूजा करते हैं, पर रात के समय जाने पे, रात के टाइम पे जाने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे कोई भूत, कोई साया, कोई आत्मा, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे ना हो, पर लोग उससे डरते हैं। और कीड़ा? मेरे को ही डर लग गया इससे। साला बताओ यार। बैंग्स। तुम मिल गए, तुम ऐसे देखने लग गए, मेरे को ही डर लग गया। तो ये एक मेंढक है जो कि भग गया, मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया। आज मैं भी डर गया भाई, सस्ती वाली भी डर गया भाई। और इससे पहले मैंने ना यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखी थी, अब वो आप शायद बिलीव नहीं करोगे, वो एक छोटा सा सांप का बच्चा था, इतना सा, बट वो जा रहा था जब मैं यहाँ पे आ रहा था। पर कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं दिखा तो हम क्यों माने इस बात को। तो ये वो पेड़ है इतना बड़ा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों से, वो 3 लड़कियों, एक लड़का और उन हस्बैंड वाइफ से इस मीटर के थ्रू बातें करूँ। उनको यहाँ पे देखने के लिए भी मैं तैयार हूँ, मैं उनको एहसास करने के लिए भी तैयार हूँ। तो वो हो सकता है सिर्फ मीटर से। ये मेरा फ़ोन रख लो। तो आइए कुछ So let's talk. बातें करते हैं। एक इस तरफ करना, कुछ आवाजें आ रही हैं शायद, हाँ है ना? एक बार इधर करना, यहाँ पे छोटे छोटे जानवर भी होते हैं घर रात को। आ रही है ना? को तो लेट कौन का नहीं सब चलो कोई बात नहीं। कुतिया डाकছে। चलो आ जाओ। उल्लार मत। लेट्स वेल। पीछे इधर ही घूम जाओ। यहाँ पर शायद कुछ लग रहा था मुझे। कहाँ पे? अच्छा, अरे ये वो हैं जो खेती बाड़ी में आते हैं ना, ये वो जानवर हैं जो कि रात को फसल उजाड़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस मीटर को ऑन करता हूँ, कुत्ते भी भौंक रहे हैं पीछे से, और बातें करने की कोशिश करता हूँ। ओह यार, कोई बात नहीं, ये पकड़ना यार, तो करो, ये पकड़ना लाइट। क्यों लड़े भाई? 1 मिनट लाइट पकड़ना यार। कोई नहीं, मैं मारता हूँ। चला गया। चलो कोई बात नहीं, पकड़ो। चलो ठीक है। पकड़ लोगे ना? हाँ, पता है खेतों में, जंगलों में ऐसे टाइम पे शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े, सांपों का, जानवर बड़ा रहता है। बट कोई बात नहीं, इस मीटर को चालू करते हैं। लाइट की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। लाइट अभी, हाँ कम कर देता हूँ लाइट थोड़ी सी ना। इसको यहाँ रख देते हैं मीटर को, लाइट को कम कर दो। EMF मीटर। कोई बात नहीं। पता হবে रुको, ভূত আসলে। ये रहा, ये दिखा दो। रुको, कोई बात কি नहीं। করছে? चलो পোকা এসে মুখে এসে বাড়ি পরেশান মারছে। এই শালা লাইট ফাইট দেখলেই পোকার বাচ্চাগুলো উঠে হুল্লার মতন এসে মুখের মধ্যে सीधा बातें करते हैं। सॉरी यार, ये अनकट वीडियो है, इसलिए बार बार कैमरा हिल रहा है, क्योंकि एक टेक में, पहली बार यूट्यूब पे कोई हॉन्टेड वीडियो बनाता तो एक टेक लेता नहीं है। मजबूरी हो, वो बात अलग है, बट ऐसा नहीं होता कि हर वीडियो आप अनकट बनाओ, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे रहस्य होते हैं। वो बताना छोड़ो। फिर से कोई है क्या? रुको, इधर नीचे करना। ये है वो कीड़े जो चढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो इसको।
ছোট मैं लाइट বাচ্চার बंद कर दूंगा, बीच में बार बार कीड़े आ जा रहे हैं। চঙ্কার মতন সাইজের পোকা। अगर यहाँ पे कोई भी उस परिवार का ऐसा कोई भी व्यक्ति, इंसान, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो, यार ये कैमरा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, एक बार मेरे को दे दो फ़ोन, कोई बात नहीं। तुम लाइट पकड़ लो, लाइट एडजस्ट कर देता हूँ। लाइट एडजस्ट कर दो। या फोन की পোকার বাচ্চা জ্বালিয়ে খাচ্ছে। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, ये लो पकड़ो, कैमरा पकड़ो। लाइट रहेगी अब। ठीक है, दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है। हाँ हाँ क्लियर है। একদম একদম পুরো পরিষ্কার। कोई भी ऐसा उस परिवार का इंसान अगर यहाँ पे है तो मुझे अपने होने की प्रेजेंस एहसास दिलाइए। बताते हैं कि आप इस पेड़ पे होते हो, अगर ऐसा है मतलब ऐसा है यहाँ पे। বলার সাথে সাথে নাকি লাইট চমকে উঠলো। ओके, बस मैं आपको यहाँ पे परेशान नहीं करने आया। आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको यहाँ पे परेशान करने आया हूँ। ये काफ़ी कंटिन्यूसली सिग्नल आया जा रहा है। शायद मैंने बात ही स्टार्ट करी है और ये कंटिन्यूसली सिग्नल आ रहे हैं। एक बार लाइट बंद कर दो। अब रुक गए एकदम। अब रुक गए हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ आप यहाँ पे हो। आपने अपने होने की मुझे प्रेजेंस फील कराई है। ये आवाज़ मेरे शूज से आ रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप उस परिवार के आदमी हो या औरत? अगर आदमी हो तो मुझे लाइट दीजिएगा, अगर औरत हो तो मुझे लाइट नहीं दीजिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे इस बत्ती के पास आके अपने होने का एहसास दिलाइए। मैं वादा करता हूँ मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ मैं आपसे यहाँ पे किसी भी तरीके की उल्टी बात नहीं करने आया। मैं जानता हूँ आप परेशान हैं, आपने কিসের আওয়াজ? मतलब ये एक आदमी है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। आई थिंक বিল্লা ফিল্লা ডাকছে নাকি? ये आवाज़ आई जाएगी গায়ে ভাই পুরো अभी दोबारा। फिर से। कोई बात কে नहीं, চিল্লাচ্ছে अब এসব? चले गया हूँ यहाँ से। मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे पेड़ के पास दिख सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ आपको। हालांकि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको देख पाऊँ, पर अगर आप हैं तो आज मैं ये कदम लेने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा है तो मुझे प्लीज़ बताइए, आप क्या ऐसा कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो কিসের আওয়াজ হচ্ছে এসব? मतलब मैं आपको देख सकता हूँ, पर आप मुझे दिख नहीं रहे हो। क्या आप वो तीनों बेटियां भी यहाँ पे हैं अपने परिवार के साथ में? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि ये परिवार आज इकट्ठा है साथ में, जो कि इस पेड़ के आसपास है, घूमता है। लाइट जलाना। সবাই নাকি কাচের মধ্যে আছে। लाइट जला देना थोड़ी सी ज़्यादा लाइट लो। बस। ये ओह, কিসের আওয়াজ হচ্ছে आई थिंक ये এগুলো? किसी रूप में होते हैं ना, तो मे भी तुमने बोला ना कि किसी भी दे कैन बी इन एनी वे। जब से अभी नहीं है, खैर अभी नहीं है, और अभी शायद चले गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी स्वेटिंग हो रही है, मेरी पूरी शर्ट भीग गई है। কিসের আওয়াজ হচ্ছে এগুলো? पता नहीं, मैं जब से ये बातें कर रहा हूँ फिर ना, से जल रही है और एकदम से ही साउंड्स बढ़ रही हैं जब भी लाइट जलती है। ये एक अलग ये अलग बात है। या
मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए। আরে আমারও হয়ে গেছে दिख रहे हैं? এই যে हाँ আরে কি এগুলো ये मैं मेरे बालों के पास भी यार मेरे को काफी ज्यादा हो रहा है शायद ये देखो गूज़बम्स। আমার পুরো দাঁড়িয়ে গেছে दिख रहे हैं? পুরো यस তোমাদের দাঁড়ালে বলে বলছে जब भी मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारे दूर से ऐसा लगा कोई रोक रहा है, कोई जैसे रोक रहा है कि मुझे वो स्टॉपिंग इससे बात अस। करने के लिए। कुछ पक्षी यहाँ पे हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं या नहीं है ये नहीं पता। कुछ पूछ सकते हैं कि दे वांट टू टॉक टू अस और नॉट यार। अगर आप चलो कोई बात नहीं मैं उनसे पूछता हूँ रुकिए। पर मेरे को ये तो श्योरिटी हो गई कि यहाँ पे जब मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम सारे देखा अब एकदम साइलेंट हो गया। हाँ। ये आया होगा ना ये कैमरे में। ऑब्वियसली 100%। খতরনাক ভাই খতরনাক जब भी मैं क्योंकि बात वो भी करता हूँ कुछ आपसे तो- क्वेश्चन करता हूँ ये सारे पंछी जानवर अब शायद फिर से ही बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं बहुत हैवी। कुछ ज्यादा ही वाइब्स हैं यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही वाइब्स हैं यहाँ पे। आई थिंक ओके। ये मेंढक की आवाज आई यार ये पीछे देखो टुक टुक ऐसे करके देखो কোথায় उधर एक बार उधर लाइट मार दो वहां से आवाज आ रही है। हाँ এখন জঙ্গলের ভিতরে সব ऐसा कोई दिख तो नहीं था। আওয়াজ চিল্লাচ্ছে मैं जानता हूँ ये सब कॉमन होता है मोरों का चिल्लाना कुत्तों का भौंकना रात को हो सकता है बट टाइमिंग पर टाइमिंग देखो एक साथ क्या একদম हर तरफ से क्या चारों दिशाओं से चारों साइड से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ शायद भाई, ये मतलब वो भाई। चाहते नहीं है कि अब बड़े रेपेलेस फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी बंद कर दो जाओ। हाँ ऐसी फीलिंग सी बार बार पता नहीं क्यों। आज मुझे एक चीज देखी तुमने यहाँ पे हाँ थोड़ा आगे आओ ये टूक टूक आवाज आ रही देख रहे हो कुछ ये पुराने जमाने की चप्पलें यहाँ पे ফরম रखी हुई ফরম हैं ফরম ফরম রাখা हाँ कुछ स्लीपर्स हैं यहाँ पे हाँ যারা পাশাপাশি ছিল তাদের ये দেখিয়েছিল। ये जो भी है मुझे नहीं पता क्या है यहाँ पे। मुझे ये तो पता चल गया कि आप लोग यहाँ पे हो और मुझे आप दिखे नहीं हो। मैं देखना चाहता था हालांकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है पर कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से जाऊँ बस मैं ये जानना चाहता था और मैं यहाँ के गांव के लोगों को और अपने कुछ लोगों को ये बताना चाहता था कि आप यहाँ पे हो। मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। अगर आप यहाँ पे हो क्या आप चाहते हो मैं यहाँ से जाऊँ? क्या आप चाहते हो तो मैं यहाँ से जाऊँ? मेरे को लाइट दो थोड़ी पास की तरफ आना और पास आ जाओ। ये नहीं चाहते मैं यहाँ पे रुकूं। मैं आपको परेशान नहीं करना है। एक बार लाइट बंद कर देता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं पास जाता हूँ मेरे कैमरे অন্ধকার করে দিচ্ছে আবার এত আওয়াজ হলো মানে ওর অন্ধকার से করে फ्लक्चुएशंस দিচ্ছে। आती है बट यहाँ पर बहुत हैवी वाइब्रेशंस है। কি বলবো বাবা अभी Oh my God. continuously चल रही है। कोई बात नहीं मैं भी दूर हूँ यहाँ से। मैं भी दूर एक मिनट कपड़े झाड़ लो अपने। हूँ। ये चाहते हैं हम यहाँ से जाएं पर आप लोग জলদি যাও मुझे জলদি वादा যাও करो থেকে বেরিয়ে যাও তাড়াতাড়ি कि आप मेरे पीछे नहीं খতরনাক आओगे, জায়গা आप मेरे साथ साथ नहीं आओगे और मेरे को সব বলছিস সব परेशान नहीं करोगे। और अगर ऐसा है और आप इस बात से পিছন सहमत পিছন हैं নাকি देखो मैंने আসবে आपको यहाँ पे कोई परेशान नहीं किया। गांव के लोगों का कहना था बस मैं ये जानना चाहता था यहाँ पे ये सब है या नहीं है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताओ। ठीक है आई थिंक वी शुड Oh stop this investigation. yes. They want us to go right now. We should leave this place right now, right? Yeah, but लाइट जगाते हैं and we are जब लाइट जगाते हैं एक बारी Yeah. Just switch on the light. I think okay. They want me to go. हाँ. They don't want to talk anymore. यार एक बार हाँ शर्ट मतलब पूरे पसीने में हो चुका है। स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। एक बारी देखें आगे कोई जानवर तो नहीं है। हो सकता है आ जाओ।
না না এতে এত কেন? थोड़ा यहाँ ध्यान से आना, यहाँ पे ना सांप के बिल भी हैं। আমি হলে এখান থেকে যখনই বলতো হুল্লার মতন দৌড় মারতাম এখান থেকে। वैसे हमें अंदर जाना नहीं चाहिए यार, पता है क्यों? बस मेरे को कोई डर नहीं है, बट तुमने स्लीपर्स पहनी हुई है, तुमने शूज़ पहनने चाहिए थे यार, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं जाते वहाँ पे, मैंने शूज़ पहने हुए हैं। देखो इसके थ्रू मुझे कुछ सिग्नल्स आए, मैं कभी भी बोलता नहीं हूँ कि भूत हैं या कुछ भी है, ना मुझे कुछ दिखा ऐसा, कीड़ों की वजह से बार बार ये करना पड़ रहा है। एक मिनट में अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। তাড়াতাড়ি मैं তাড়াতাড়ি। इस बात से सहमत हो गया हूँ, इस बात से एग्री हो चुका हूँ कि यहाँ पे उन चीज़ों की प्रेजेंस है, जैसा कि गांव वाले बताते हैं, जैसे कि आपने इंटरव्यू में और आई थिंक देखा इट्स मतलब अनईजी है, नहीं आना चाहिए यहाँ पर अभी नहीं तो आना फिलहाल चाहिए, तो, जब तक कोई प्रॉपर तरीके से कुछ होना। और अगर किसी को आना हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जरूर मेरे से কোনো ये দরকার बार बार নেই, कीड़े घूम रहे हैं। আমি আসতে চাই না। আমি मेरे से যেতেও इंस्टाग्राम চাই पे না। फॉलो करके आप मुझसे ये जगह के बारे में जान सकते हो, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। ऐसा कोई भी इंसान अगर यहाँ पे आना चाहता हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, একদম একদম। पर আমি আমি না আমি না। आओ, चाहे दिन में आओ चाहे रात में आओ, बहुत सेफ्टी के साथ आना। 5-6 लोग साथ में, या हमारी तरह मत आ जाना। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे यहाँ के कुछ रूल्स पता है, यहाँ के लोगों का नेचर पता है, मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर लेता हूँ। এই ডাকটা যখনই দেয় না ভিতরে একটু দাম করে ওঠে, দাম। वी शुड एंड दिस वीडियो। একদম একদম তাড়াতাড়ি। तो बस मैं ये चाहता हूँ यार कि इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी, जब मैं इस ईएमएफ पे बात कर रहा था पीछे से शोर हो रहा था। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ওই पूरी আমার তো वीडियो প্রথম देखो। রাত আমার আবার হয়ে গেছে ওই আওয়াজ শুনেই। তো গাইজ এইটা ছিল হচ্ছে ভিডিও, মানে ওই যে পিছন দিয়ে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে দিয়ে যে আওয়াজগুলো আসছিল ওটা শুনে মানে ভিতর থেকে পুরো একদম পুরো পুরো মানে সর্ব অঙ্গ শরীরে কাটা দিয়ে উঠেছিল। না খতরনাক পুরো, মানে কি বলবো, জাস্ট আমি কিছু বলতে চাই না। মানে ভয় পেয়েছি, অবশ্যই পেয়েছি, ভয় কেন পাবো না? ওরকম একটা শুনশান জায়গায় ওরকম একটা ইএমএফ মিটারটার কোনো আইডিয়া নেই, আমি আমি ঠিক জানি না, এটা ব্যাপার আমি পরে দেখবো একবার। কিন্তু যদি কেউ জানা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ইএমএফ মিটারে যে আমি আগে শুনেছিলাম, মানে সে কি বলবো তোমাকে, হিস্ট্রি টিভি 18 যে চ্যানেল আছে ওখানে যখন দেখাতো প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস, সেখানে ইএমএফ মিটার আমি দেখেছিলাম একবার। তবে সেটাকে তখন খুবই ছোট ছিলাম, অতটা জানতাম না, বাট আজকে দেখলাম, এটা একটা পুরো বিষয়টা দেখলাম। তো জানি না এটা কি হয় কিনা, অবশ্যই হয়েছে নিশ্চয়ই, জানি না ঠিক হয়েছে নিশ্চয়ই, হয়তো হলো বলে ওরকম টাইপের একটা জিনিস সব ক্রিয়েট হলো। তো যাই হোক, আমার হালকা ফুলকা শুকিয়ে গেছে, তো তোমরা চিলে বলে আমার একটু মনোবল এসছে। তো যাই হোক, তো অবশ্যই জানিও কমেন্ট করে কে কি জানো এই বিষয়ে, কি কি লাগলো তোমাদের, কি ভয় লাগলো কি ভয় লাগলো না, অবশ্যই জানিও। তো আজকে ভিডিও এখানেই শেষ করছি, নেক্সট দিন আসছি আর একটা ভুতিয়া ভিডিও নিয়ে। তো টাটা।